So good morning one and all, and today we are going to move ahead with the next topic of chapter number 5, which is understanding elementary shapes. And we had learned in this chapter about the measurement of length with the different methods. And then after we had learned about angles. Then after we had learned about triangles. And related to triangle, you people have completed the last one exercise, which is 5.6. Hopefully now you all are clear with all this concept of geometrical shapes, है ना? Line segment हमने पढ़ लिया, then angles पढ़ लिया, and what is triangle? Triangle क्या है? Three-sided a geometrical figure with three-sided polygon. Geometrical figure. With three-sided shapes. It is formed by three angles and three line segments. Three line segments and three angles are there. Got it? In which figure? कौन सी फिगर की अभी हम बात कर रहे हैं? Triangle. चलो. So today we are going to move ahead with the next one topic, which is about the quadrilateral. And as we know that triangle is made up with three lines, three angles and three sides. Same way, quadrilateral has definition that it is made up with four sides and four angles. Okay, so that we are going to understand today. It is given on page number, which is it 104. आपके पेज नंबर 104 पे दिया गया है. क्लास की सुन है. क्लास की सुन है. So quadrilateral, जैसे मैंने triangle में आपको एक्सप्लेन किया था. Tri means three. Tri means three angles. Okay. So three angles से और three sides से जो भी फिगर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? Triangle. Here the word is given for the figure is quadrilateral. Qua means four. That's why you keep it in your mind. With the four sides and four angles, whatever the figure form, geometrical figure, is known as quadrilateral. The basic definition of quadrilateral is this figure has four sides and four angles. Here one figure is drawn in which these four vertices are there, and vertices are denoted with the intersection point of two sides. What is vertex of any closed figure? So it is the intersection point of two sides. Is known as vertex of the closed geometrical figure. But if it has more than one, then it is the plural of vertex is vertices. Okay. So these are the lines, sides AB and BC, which two sides are intersecting each other at point B. है ना? Then BC and CD are intersecting at C. CD and DA are intersecting at D. And DA and AB are intersecting at A. So these four are vertices of a quadrilateral. And what is vertices? It means that it is an intersection point of two sides of a quadrilateral. Got it? So quadrilateral has four sides, four angles, and it is made up of with four sides and four angles. You can name a quadrilateral in any way using any four alphabets. Okay, but the alphabets must be in the consecutive form. Consecutive form means what? आप ऐसे नहीं यूज करते कि यहाँ X आ गया, यहाँ A आ गया, यहाँ M आ गया और यहाँ F आ गया. It is not wrong. But we could not remember it properly. We could not read it properly. We could not name its sides properly. That's why I suggest that whenever you name a quadrilateral, use the consecutive alphabets.
Here A, B, C and D is given. So we can then say that which figure is this one? So it is quadrilateral A, B, C, D. Got it? So, and now, how to name a quadrilateral? You can name a quadrilateral from any vertex. You can start the first alphabet which you want to take. Okay? मैं अगर P, Q, R, S लेना चाहूँ तो वो भी ले सकते हैं. D, E, E, F लेना चाहूँ तो वो भी ले सकते हैं. L, M, N, O लेना चाहूँ तो वो भी ले सकते हैं. Okay? W, X, Y, Z लेना चाहूँ तो वो भी ले सकते हैं. लेकिन it must be consecutive. Now, yes. मैम ये जो क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम लोग परफेक्टली नहीं ड्रॉ कर सकते. वो आएगा बेटा, अभी वेट करो, वो आएगा. चलो, अभी ये A, B, C, D जो आया, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि जो 4 वर्टेक्स जो रिप्रेजेंट किए हैं अल्फाबेट से, तो A यहाँ से स्टार्ट किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज नेम दिया गया है उसका, है ना. A के बाद B कहाँ पे आया? एंटी क्लॉकवाइज. B के बाद C एंटी क्लॉकवाइज, C के बाद D एंटी क्लॉकवाइज. So we can move anti-clockwise also and clockwise also. Anyway, okay. So I can name it in this way also. A, B, C, D. ऐसे भी हम नेम कर सकते हैं. Now it is not necessary that first alphabet you have to start from any particular vertex. You can name any vertex as A. A आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो. You got it? मानिए all 4 में से किसी भी वर्टेक्स पे से आप उसका नेम शुरू कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग, आप क्लॉकवाइज भी दे सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हो. अल्फाबेट को जब पढ़ते, क्वाड्रिलेटरल को जब हम पढ़ते हैं तब भी जरूरी नहीं कि आप यहीं से शुरू करो. आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो. D, A, B, C यहाँ से भी शुरू कर सकते हो. C, D, A, D. बट हमको पढ़ने में कुछ इश्यू ना हो, इजीली याद रख सके, इसलिए हम लोग जो कॉन्जिक्यूटिव वे है उसी पे जाते. मानी क्वाड्रिलेटरल को, ये क्वाड्रिलेटरल को जो नाम देना है तो मैं उसको डिफरेंट 8 नेम दे सकती हूँ. कितने? हाउ वुड आई? चलो मैं शुरू करती हूँ A से. ठीक है, तो एक नाम हो गया A, B, C, D. अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज गई, बराबर. A से शुरू किया तो A, B, C, D हो गया. B से शुरू करूंगी तो B, C, D, A हो जाएगा. C से शुरू करूंगी तो C, D, A, B हो जाएगा. और D से शुरू करूंगी तो D, A, B, C. ये 4 नेम्स हो गए एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अभी मैं क्लॉकवाइज चलती तो A, B, C, D एक नेम हो गया. B, C, B, A सेकेंड नेम हो गया. C, D, A, D थर्ड नेम हो गया. एंड B, A, B, C 4 नेम हो गए. My quadrilateral has, any quadrilateral has different 8 names. आपको ये कंफ्यूजन में नहीं आना है कि मुझे कौन सा नाम लिखना है. ये 8 में से आप कोई भी नाम लिखो, सही. ठीक है, किसी भी तरह से लिख सकते. बट जनरली इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ मैथ्स कि जनरली वी नेम इट क्लॉकवाइज एंड कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स. माने मुझे क्लॉकवाइज जाना है तो मैं ये क्लॉकवाइज जाऊंगी तो A, B, C, D. इस तरह से हम जनरली डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं. और जब रीड करते हैं तब भी ऐसे रीड करते हैं कि इट इज एन क्वाड्रिलेटरल विथ नेम A, B, C, D. क्वाड्रिलेटरल की डिनोट करने के लिए एक स्मॉल सिंबल है. ये छोटा सा ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करके हम लिख सकते हैं कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल A, B, C. ओके, जैसे ट्राइंगल में हम ऐसे ड्रॉ करते थे ना, ट्राइंगल A, B, C. वैसे क्वाड्रिलेटरल में ये सिंबल है. क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन कीप इट इन योर माइंड अ स्मॉल स्क्वायर. ठीक है, तो उसे इस तरह से लिखते हैं. तो मानी व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन एक्चुअली. इफ यू रिमेंबर whenever we refer chapter number 4, polygon
is a closed figure made up with line segments. Okay, and quadrilateral is a closed figure made up with 4 line segments and 4 angles. Okay, that's why in your textbook it is given that a quadrilateral, if you remember, is a polygon which has 4 sides. Okay, ये सिंपल आपको क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन दिया है. क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके पास मिनिमम 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं. ओके, और जो अपोजिट वर्टाइसेस को हम जब इस तरह से एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं साइड से, तो हमें 2 और साइड्स मिल गए. देखो, इसकी 4 साइड्स थी. कौन सी? एक AB थी, BC थी, CD थी, and DA. These line segments are sides of quadrilateral ABCD. But now I have joined the opposite vertices. है ना? D और B को मैंने join किया, C और A को मैंने join किया, तो हमको 2 और line segments मिले. कौन से मिले? Line segment AC and line segment BD. ठीक है? तो ये जो 2 line segment मिले, how could we get it? By joining the opposite vertices, जिसमें कोई साइड कॉमन नहीं है. ये जो है adjacent vertices. adjacent क्यों है? A का B and D जो है adjacent vertices है. adjacent क्यों है? Because the side is common there. ये भी हम पढ़े हैं जब आगे पढ़े थे, if you remember. इसमें sides common है, इसलिए ये adjacent vertices. A के एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या है? तो B एंड D. B के क्या है? A एंड C. C के क्या है? D एंड A. और D के क्या है? A एंड C. Why these are adjacent vertices? Because there is a common side between these 2 vertices. And these are B and D and A and C are opposite vertices. Why they are opposite? Because there is no common side between these 2. यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी साइड कॉमन नहीं है, and that's why it is known as opposite vertices. और जब हम opposite vertices को join करते हैं, तो हमको 2 other line segments we get, and these 2 line segments by joining opposite vertices we get are known as diagonals of a quadrilateral. क्या बोलते हैं हमको? Diagonals. ये दोनों को क्या बोला है? Diagonals. Spelling क्या है? DIAGONALS. Diagonals. Diagonals क्या है? तो whenever we join the opposite vertices of a quadrilateral, we get the 2 line segments which are known as diagonals. So every quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. Minimum 2 diagonals it has. See, quadrilateral cannot be made up without 4 sides, without 4 angles. और जब भी आप 4 sides and 4 angles draw करोगे, at that time you will get 2 diagonals. 100% 2 diagonals हमको मिलता ही. और related to this quadrilateral, all these characteristics are given in your textbook on this page. यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक साइड का मेजरमेंट अलग अलग. ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो उसका मेजरमेंट अलग अलग है ना, 4 साइड्स. वैसे 4 एंगल्स भी अलग किया है. माइट बी इट इज एक्यूट, माइट बी इट इज ऑब्ट्यूज, माइट बी इट इज राइट. बराबर है. दूसरी बात, एक और बात बता दूं आपको, कीप इट इन योर माइंड एंड पे योर अटेंशन हियर. जब भी हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो 2 ट्रायंगल से बनता है. देखो, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया. बराबर है. तो इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये सेट स्क्वायर को यूज करके क्वाड्रिलेटरल बनाने की बात है. तो ये एक आपके पास 2 सेट स्क्वायर है, एक ये बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला, 2 सेट स्क्वायर यू हैव. तो आप सेट स्क्वायर को इस तरह से रखोगे तो यू विल गेट द 4 साइड्स. आपको 4 साइड्स मिल सकती है.
वो 4 साइड्स को मिला के आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हो। और सेम वाला सेट स्क्वायर लोगे आप तो अच्छा होगा कि यही वाला लेना है, वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये एक वो आप बाद में हम करेंगे, अभी नो नीड टू पे अटेंशन। तो आप ये वाले 2 लेके बनाओगे तो भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और ये वाला बनाओगे तो भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इन शॉर्ट बताने की बात ये है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 ट्राइंगल होते हैं। कितने? 2 ट्राइंगल्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल। ये फिगर आप देख लें, बेसिकली इट इज गिवन लाइक पार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मैथ्स। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 एंगल छुपे होते हैं, और वी हैड लर्न दैट the sum of measures of angles of a triangle is always 180 degree. Sum of measures of triangles of a triangle is always 180 degree. ये भी 180 होगा और ये भी 180 होगा। मान अगर मुझे सम पाने हैं किसके? sum of measures of angles of a quadrilateral is always 360 degree. Is always 360 degree. Because यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल के जो एंगल्स है उनका मेजर 180 होता है। तो इसका भी 180 हो गया, इसका भी 180 हो गया। तो जब मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो क्वाड्रिलेटरल में तो ये पूरा एंगल है, ये भी पूरा एंगल है, ये भी पूरा है और ये भी पूरा है। तो ऑल 4 एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो इट इज ऑलवेज 360 डिग्री, नॉट लेस देन 360, नॉट मोर देन। मानिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज ऑलवेज 360 degree. रिलेटेड टू दिस क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल के रेफरेंस में हम बोल सकते हैं। अगर उसको डी ई एफ जी दिया है नाम तो एंगल बदल जाएंगे, एंगल डी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी। पी क्यू आर एस नाम दिया है तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस। अभी जब भी एंगल हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के तब इस तरह से पूरे एंगल, फुल एंगल हम लिखते हैं। बराबर? देखो यहाँ पे एंगल बी ए डी, मानी कौन सा? स्टार्ट फ्रॉम डी, तो बी ए डी ये एंगल हो गया, ठीक है। फिर एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी, तो ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, तो ये वाला एंगल हो गया। एंड कौन सा चुक गया? एंगल सी बी ए, ये चुक गया। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल सी बी ए। कंप्लीट कर लो। एंड साइड में भी वैसे किया है, तो लाइन सेगमेंट ए बी ये आ गई, लाइन सेगमेंट बी सी ये आ गई, तो लाइन सेगमेंट सी डी इज लेफ्ट एंड लाइन सेगमेंट डी ये भी हो गया। चलो देन आप यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिया है कि 4 अनइक्वल स्टिक्स लेके आप ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो, क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। क्या लेना है? अनइक्वल स्टिक्स। इसके चारों के चारों अनइक्वल स्टिक्स, तो इससे आप ऐसा बना सकते हो। उसके जो एंगल है तो ऑल 4 एंगल्स आर एक्यूट। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बना उसके जो एंगल्स आएंगे वो क्या आएंगे? एक्यूट आएंगे। वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक एंगल ऑब्ट्यूज आएगा उसमें से, ठीक है। वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल भी आप बना सकते हो। फिर वन ऑफ द टू ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, 2 एंगल्स को ऑब्ट्यूज बना सकते हो। मानी ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। चलो 2 ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, 2 एंगल को आप राइट एंगल भी बना सकते हो। 4 डिफरेंट मेजर की अनइक्वल स्टिक से, 4 अनइक्वल स्टिक से आप बना सकते हो। एंड द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, डायगोनल्स को परपेंडिकुलर भी बना सकते हो। परपेंडिकुलर याद है कि भूल गए?
Yeah, if two lines are intersecting each other at right angle, then those lines are known as perpendicular to each other. And parallel में parallel lines किसे बोलते हैं? That do not meet each other. If two lines do not intersect each other, okay, then those lines are known as Parallel. okay. Railway tracks are the example of parallel lines. And here the intersection of two edges of board is an example of two adjacent sides. मैंने बोला है ना, two adjacent sides of table top. ओके, वो क्लियर होना चाहिए. क्लियर हो सब? देन आफ्टर जो मैंने बताया वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. व्हाट इज दैट? यूजिंग सेट स्क्वायर यू कैन प्रिपेयर डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल. सो हम पढ़ते चले. ये सेट स्क्वायर आप लोगे ना ऐसा वाला, तो ये सेट स्क्वायर से आप रेक्टेंगल बनाओ. क्या बनाओगे? रेक्टेंगल बनाओ. इसके आगे दूसरा रखोगे तो रेक्टेंगल बनेगा. ऐसे बनाओगे तो भी बनेगा. ठीक है. तो रेक्टेंगल जब बनता है तो उसमें आप लोग रेक्टेंगल से तो फैमिलियर हो, बराबर. जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं मालूम है? हम अपोजिट साइड जो होती है ना उसको इक्वल मेजर रखते हैं. क्या करते हैं? अपोजिट साइड्स को इक्वल मेजर रखते हैं. फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? तो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया सिंपल, बराबर. ये देखो यहाँ पे अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड का मेजरमेंट सेम. ये साइड एंड ये साइड का मेजरमेंट सेम. फिर एंगल का मेजर क्या आएगा? 90 डिग्री है. कंफर्म. ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. इट्स राइट एंगल्स. सो दैट्स व्हाई जो एडजेसेंट साइड हो गई ये वाली और ये वाली, और उसके बीच में कौन सा एंगल बना? 90 डिग्री. तो वो दोनों लाइंस क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर. यानी एडजेसेंट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है. एंड अपोजिट साइड्स ले रहे हम, ये और ये एंड ये. तो वो कैसी बनेगी? पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है. माने दीज ऑल आर क्वालिटीज ऑफ रेक्टेंगल. क्वालिटीज क्या बोलते हैं? या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टेंगल. Characteristics of rectangle are: rectangle is a closed figure made up with four sides and four angles. Means it is a quadrant. Okay. It has opposite sides equal measure. Four angles are of equal measure. Opposite sides are parallel to each other, and adjacent sides are perpendicular to each other. For example, इससे मैं नाम दे दूं P, Q, R, S. तो फर्स्ट क्वालिटी हमें फोर लाइन सेगमेंट चाहिए उसमें, तो वो है कौन से? P, Q, Q, R, R, S, and S. फोर साइड्स हो गए. फोर एंगल्स, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S. इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या तो आप पूरा भी लिख सकते हो. P Q R, Q R S, R S P and S P Q. ऐसे भी आप लिख सकते हो. फिर all four angles, measure angle P is equal to measure angle Q is equal to measure angle R is equal to measure angle S are 90 degree. Okay, are right angle. Then opposite lines means line segment P Q ले लो is parallel to line segment S. ये एक पैर हो गई अपोजिट साइड. दूसरी TS एंड QR. तो लाइन सेगमेंट TS इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट QR. माने किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स की दो पैर हमें मिलती है. ठीक है. अभी एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट में ये PQ हो गया और QR हो गया. तो लाइन सेगमेंट PQ जो है वो परपेंडिकुलर है इससे QR. एडजेसेंट साइड्स की फोर पैर्स मिलेगी. कितनी
बचेगी 4। PQ एंड QR हो गया। अभी QR एंड RS आएगा, तो लाइन सेगमेंट QR इज परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है। अभी RS एंड SP आएगा, तो लाइन सेगमेंट RS इज परपेंडिकुलर टू SP एंड अभी आएगा SP एंड PQ, लाइन सेगमेंट SP इज परपेंडिकुलर टू PQ। मानी ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड्स, क्या हो गया, एडजेसेंट साइड्स। और ये वाला क्या हो गया, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स की हाउ मेनी पेयर्स विल गेट, 2 अपोजिट साइड्स 2 पेयर्स एंड एडजेसेंट साइड्स की 4 पेयर्स, ठीक है। 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल मीन्स रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे आप अपोजिट साइड्स में पैरेलल बताए ना, उसके साथ ये भी लिख सकते हो क्या, तो PQ का मेजरमेंट जो है वो SR जितना है और PS का जो मेजरमेंट है वो QR। यहाँ मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैं मेजरमेंट लिख रही हूँ लाइन सेगमेंट। मैंने जब लाइन सेगमेंट वाली बात बताई थी तब ये एक्सप्लेन किया था कि whenever you represent the measurement of line segment, आपको लाइन सेगमेंट का सिंबल ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि मेजरमेंट क्या बताता है कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P to Q, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P to Q is equal to distance from point S to R, and that's why यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं किया, सिंबल ड्रॉ नहीं, बराबर है। तो ये अपोजिट साइड्स हो गई, पैरेलल साइड्स, एडजेसेंट साइड्स हो गई, ऑल इक्वल हो गया, एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल्स राइट एंगल। ये सारी क्वालिटी किसके लिए है, रेक्टेंगल, बराबर। अभी स्क्वायर नियर बाय रेक्टेंगल, ओनली वन थिंग इज डिफरेंट, क्या कि इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स, समझ में आया। और यहाँ पे जो डायगोनल्स मिलेगा ना, डायगोनल्स वो भी इक्वल मिलेगा, और डायगोनल्स जो मिलेंगे वो परपेंडिकुलर भी मिलेंगे, हर एक एंगल आपको 90 मिलेगा, है ना। तो वो परपेंडिकुलर भी मिलेगा, बाइसेक्टर भी होगा। डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मानी 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं, बराबर। तो स्क्वायर में इतना ऐड हो जाएगा, क्या ये सारा तो रहेगा कि अपोजिट साइड पैरेलल, एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, 4 साइड्स आर इक्वल, वो ऐड हो जाएगा, डायगोनल्स आर इक्वल, वो ऐड हो जाएगा, डायगोनल्स 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, वो ऐड हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वो ऐड, बराबर। स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, ये स्क्वायर आप पढ़े हो, बराबर, बहुत सालों से पढ़ते आए। अभी तीसरी फिगर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है वे हमारा नहीं हुआ ना, हाँ हमारी तो टर्न है। पैरेललोग्राम जो है ये वाला पैरेललोग्राम, अभी आप देखोगे तो आपका जो ये सेट स्क्वायर है ना बड़ा वाला, वो सेम 2 सेट स्क्वायर को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करोगे तो आपको पैरेललोग्राम मिलेगा। और पैरेललोग्राम की कंडीशन सिर्फ एक ही है, उसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है। देखो पैरेललोग्राम ये सेट स्क्वायर रख के बनाया है पैरेललोग्राम। मुझे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो मैं ऐसे भी ड्रॉ करूंगी, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स को आप कैसे भी एक्सटेंड कर लो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट पैरेलल, ठीक है। ये भी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल। और दोनों जो भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स की दोनों पैरेलल है, then that quadrilateral is known as parallel. So both the pairs of opposite sides must be parallel to each other. Parallelogram, उसकी स्पेलिंग याद रखना,
PARALLELEGRAM। प्रोनाउंसिएशन से स्पेल करना सीख जाओ। बोलते क्या है? पैरेललोग्राम। पैरे मीन्स PAR, ललो मीन्स LLELOGRAM, पैरेललोग्राम। ठीक है, स्पेलिंग याद रखो। ये हो गया पैरेललोग्राम। और ये एक है जिसे रोम्बस बोलते हैं, जो ये आपका छोटा वाला सेट स्क्वायर है उससे आप बना सकते हो, बराबर है। रोम्बस में एक क्वालिटी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। उसका स्क्वायर के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है, लेकिन ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते। बराबर है। तो ये रोम्बस हो गया। एंड एक टाइप अभी और बाकी है विच इज ट्रेपेजियम, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। ये ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो है उसमें टू साइड्स पैरेलल है और आपकी टेक्स्ट बुक में ये फिगर दिया गया है वहां पे, और फिर हमको ये टेबल पे कंप्लीट करना है। ये ट्रेपेजियम जिसमें it is also quadrilateral which has all four sides, which has four angles, two diagonals, all things are there and opposite sides are there. चलो यहाँ पे हम लिखते चले, टेबल कंप्लीट कर ले। पहले आपको टेक्स्ट बुक में करना है। You complete in the text book. Whatever we had done, it is given in the sum up over here. आपको सारे के सारे ये टाइप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि which quadrilateral is known as rectangle, as square, as trapezium, as rhombus and as parallelogram. So वो सारा सम अप करने के लिए ये टेबल दिया गया है। First example is given over here. In the first one column quadrilateral names are given. Then opposite sides के बारे में parallel और equal दो क्वालिटीज हमको चेक करनी है। All sides are equal or not वो क्वालिटी चेक करनी है। Opposite angles equal है कि नहीं वो चेक करने हैं। Diagonals equal है या perpendicular है वो चेक करना है। तो चलो पैरेललोग्राम के बारे में यहाँ दिया है कि opposite sides parallel तो yes, equal तो yes। तो रेक्टेंगल में क्या आएगा? पैरेलल है opposite sides yes। तो यहाँ yes लिखो। इक्वल है yes। स्क्वायर में पैरेलल है opposite sides स्क्वायर में स्क्वायर में पैरेलल होंगे कि नहीं opposite sides? Yes, we are talking about opposite sides and equal है yes। रोम्बस में पैरेलल तो है ही। रोम्बस में पैरेलल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इक्वल आएगी yes, all sides are equal in रोम्बस एंड ट्रेपेजियम में दोनों साइड में क्या आएगी? बराबर है। तो यहाँ पे नो आएगा। ऑल साइड्स इक्वल है। ऑल साइड नो कहाँ पे? पैरेललोग्राम में नहीं है, रेक्टेंगल में भी नहीं है, स्क्वायर में यस, रोम्बस में यस, ट्रेपेजियम में नो। मानिए यहाँ यस यस नो। चलो फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल यस पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में यस, स्क्वायर में रोम्बस में ट्रेपेजियम में डायगोनल्स पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में स्क्वायर में रोम्बस में यस, ट्रेपेजियम में परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं? पैरेललोग्राम में नहीं होते, रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में रोम्बस में एंड ट्रेपेजियम में। ठीक है। और एक्सरसाइज 5.7 आपको खुद करनी है, समझ लो एक बात से। 5.7 में अगर आप देखोगे तो क्या है? ट्रू और फॉल्स है। जो ट्रू और फॉल्स आपको अभी जो हमने टेबल किया ना उसी से मिल जाएंगे सारे। टुमारो वी विल सॉल्व इट।
एक बार समझ लो, 2 मिनट यू जस्ट स्टैंड एट योर प्लेस, सिट एट योर प्लेस. ये जो ट्रू और फॉल्स है, दैट यू विल गेट द आंसर्स फ्रॉम द टेबल व्हिच वी हैव लर्न जस्ट नाउ. यहाँ पे रीजंस देने, मानी एक में समझा देती हूँ. अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. तो स्क्वायर को स्पेशल रेक्टेंगल बोला जाता है. तो यस, क्यों, रीजन देना. रीजन क्या है? तो रेक्टेंगल की कई क्वालिटीज है जो कि स्क्वायर में फुलफिल होती है. जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, एंगल्स जो है ऑल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, इसीलिए वी कैन से दैट स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करना. कल हम डिस्कस भी कर लेंगे. आज टुडे आई पोस्ट इट सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. आप लोगों को नोटबुक में कंप्लीट करना है, बट विथ लॉजिकल रीजंस. ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना. ठीक है.